Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in the English class. This is our English book, Wordsworth English Reader, Book 1. I am sure you all must be happy, healthy and fit in the safe confines of your home. You all must be confined to home at the moment. अभी तो सब घर के अंदर ही होंगे, बट इट इज़ बेटर टू रिमेन इनसाइड. अभी घर के अंदर रहना ही अच्छा है. अभी बाहर आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है until and unless it is very very important. I hope that you all are liking your online classes and you are enjoying them. At the same time, you are watching the videos also which are posted on YouTube and you are liking them. उन videos को देखना आपको अच्छा लग रहा है. So, are you all ready for the class to start? So, let us begin. We are doing lesson number 5 in our English course book. And the lesson is a visit to the vegetable shop. We all require vegetables. We have already started this lesson. We all eat vegetables and eating vegetables is very good for health. It is very very important also. ग्रीन वेजिटेबल्स खाना या हर तरह की वेजिटेबल खाना हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स तो हर कोई खाता है. सो वेयर डू वी गेट दीज वेजिटेबल्स फ्रॉम? ये वेजिटेबल्स हमें मिलती कहाँ से हैं? वी डू नॉट ग्रो देम. हम तो उन्हें ग्रो नहीं करते. वी बाय दीज वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट ओनली. मार्केट जाते हैं, मार्केट से वेजिटेबल्स लेकर आते हैं. एंड who grows these vegetables? जो farmers होते हैं, the farmers grow these vegetables, then they bring the vegetables to the market, to the wholesale market in fact. Wholesale market में देते हैं, then these vegetable vendors, they buy vegetables from the wholesale market. वहाँ से लेकर के फिर वो अपना शॉप में या जो ठेले पे लेके घूमते हैं वेजिटेबल वेंडर्स, वहाँ से वो अपनी शॉप लगाते हैं. So for buying vegetables, we go to the vegetable shop only. Most of us, we do not go to the wholesale market और grow तो हम करते ही नहीं हैं. We do not buy the vegetables directly from the farmers. So we go to the vegetable shop to buy vegetables. So Tina is a small girl, as you can make out from the picture. इस picture से आपको देख के समझ में आ जाएगा कि Tina is not a very big girl. She is a small girl. So one bright summer morning, Tina's mother, before starting the new paragraph, I will just revise the part which we have already done. जितना part हमने कर लिया है, एक बार उसकी story just short में बताऊंगी. Tina is a small girl. One bright morning, her mother decided to take her to a vegetable shop. टीना की मम्मी ने डिसाइड किया कि वो टीना को लेकर के एक वेजिटेबल शॉप पे जाएंगी. तो वेजिटेबल शॉप में भी लाइक व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वी गो देयर एवरी डे. रोज जाके जब हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो वी ऑलमोस्ट हैव अ फिक्स्ड शॉप. नॉर्मली वी गो टू द सेम शॉप एवरी डे बिकॉज देन वी नो द पर्सन. उसको हम जान जाते हैं तो वी गो टू द सेम शॉप ऑलमोस्ट एवरी डे. सो प्रोबेबली हो सकता है जहाँ से इसी की शॉप से, मोहनलाल की शॉप से ही वो लोग खरीदते हो, तो उनकी जो मोहनलाल जो वेजिटेबल वेंडर है उसकी शॉप एमजी स्ट्रीट के एक कॉर्नर में है. एमजी स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द रोड. स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क. सो एमजी स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द रोड. तो जो एमजी स्ट्रीट है उसके एक कॉर्नर में मोहनलाल की वेजिटेबल्स की शॉप है. And the shop was full of different types of vegetables. Laden with का मतलब होता है भरी हुई, बहुत सारी vegetables. तो जो शॉप थी मोहनलाल की, it was full of different types of vegetables. बहुत सारी उसके पास vegetables थी. It was very neat, clean and looked very colorful. उसकी जो शॉप थी वो बहुत नीट थी, बहुत क्लीन थी and it looked very colorful.
ऑब्वियसली व्हेन देयर आर सो मेनी वेजिटेबल्स, इतने सारे कलर्स के, अलग अलग कलर्स की जब वेजिटेबल्स होंगी तो कलरफुल तो लगेगी ही. ब्रिंजल इज पर्पल इन कलर, बीटरूट इज dark red, cabbage is green, carrot is orange, then radish is white, onion is pinkish in color, potato is brown सा होता है ना, आलू जो होता है. Then this brinjal बैंगनी कलर का है, rest green color. Green के भी there are so many shades. Some vegetables are dark green in color, some are light green in color. Tomatoes are bright red in color. So when all these vegetables are there, the shop will naturally look very colorful. So and it was very neat and clean also. बहुत साफ सुथरी शॉप थी. So when Tina had gone to the vegetable shop for the first time. उसके पहले वो शायद कभी गई नहीं थी. तो she was very excited when she saw so many different types of vegetables. जब उसने इतनी सारी कलरफुल वेजिटेबल्स देखी तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई. ठीक है. Then her mother asked her to select some vegetables which she wanted to take home. उसकी मम्मी ने कहा कि जो भी वेजिटेबल्स लेनी है सेलेक्ट कर लो. What all Tina selected? She picked up some orange carrots, a huge pumpkin, huge माने बड़ा सा, और fresh cauliflower. Fresh मतलब एकदम ताजी. Cauliflower is फूल गोभी जो होती है. Some juicy tomatoes. Tomatoes के अंदर तो जूस होता ही है. And a bright red beetroot. एक bright red कलर का beetroot. Beetroot एक वेजिटेबल है जिसको हिंदी में कहते हैं चुकंदर. एंड इट इज एब्सोल्युटली रेडिश ब्राउन, बिल्कुल मरून रेड सा, बहुत डार्क सा कलर होता है. सो टीना सेलेक्टेड ऑल दीज वेजिटेबल्स. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस पैराग्राफ. सो आज मैं इसके आगे के पैराग्राफ से स्टार्ट करूंगी. Her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions each, along with a handful of coriander. Her mother picked up 1 kilogram of potatoes, 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 and onions, onions each, and onions each along, along, along with a handful of coriander. टीना की मदर ने क्या क्या लिया? उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज एंड अनियंस ईच, मतलब उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम पोटैटो लिया और 1 किलोग्राम अनियन. पोटैटो यू ऑल नो, पोटैटो इज आलू एंड अनियन इज प्याज. तो उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम अनियन लिया, 1 किलोग्राम प्याज लिया और क्या लिया? एंड अलॉन्ग विथ अ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर. कोरिएंडर इज धनिया की पत्ती, जो हरी हरी ग्रीन कलर की विंटर्स में मिलती है धनिया की पत्ती. कोरिएंडर इज धनिया की पत्ती. तो उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम पोटैटो लिया, 1 किलोग्राम अनियन लिया, अलॉन्ग विथ अ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर. हैंडफुल मतलब थोड़ी सी. नॉर्मली जब हम बहुत ज़्यादा सब्जी लेते हैं, बहुत सारी सब्जियां खरीदते हैं, तो स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स जो वेजिटेबल वाले होते हैं वो ऐसे ही थोड़ी सी ग्रीन कोरिएंडर लीव्स दे देते हैं. विंटर्स में जब कोरिएंडर का जो सीजन होता है, बहुत धनिया की पत्ती होती है, तो अक्सर जब हम ज़्यादा वेजिटेबल्स लेते हैं तो वेजिटेबल्स वाले ऐसे ही दे देते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती. तो उसकी मम्मी ने 1 किलोग्राम पोटैटो लिया, 1 किलोग्राम अनियन लिया एंड थोड़ी सी कोरिएंडर धनिया की पत्ती ली. शी also chose some green vegetables like bunches
of bunches of spinach, some French beans, and a big leafy cabbage. टीना की मम्मी ने 1 केजी पोटैटो लिया, 1 केजी अनियन लिया और थोड़ी सी धनिया की पत्ती लिया. उसके साथ उन्होंने और क्या क्या लिया? शी चोज सम ग्रीन वेजिटेबल्स. उसके साथ में उन्होंने थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स भी ली, जैसे बंचेस ऑफ स्पिनच. स्पिनच इज पालक. स्पिनच होता है पालक का साग. पालक का साग इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, जो कि जिन लोगों को आयरन डिफिशियंसी होती है, मतलब खून की कमी हो जाती है, तो उनको यही बीट रूट है, आयरन है, ये सारी वेजिटेबल्स खाने को बोलते हैं, विच आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन. इसीलिए आप देखोगे जैसे जो बीट रूट होता है, दैट इज एब्सोल्युटली रेडिश इन कलर बिकॉज ऑफ इट्स आयरन कंटेंट. ठीक है. स्पिनच इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन. स्पिनच, इसलिए विंटर्स में लोग स्पिनच खाते हैं, स्पिनच का सूप पीते हैं, स्पिनच का जूस पीते हैं. ठीक है. माने लोग स्पिनच को अलग अलग फॉर्म में कंज्यूम करते हैं. सो उसकी मम्मी ने स्पिनच का बंच भी लिया, सम फ्रेंच बीन्स. फ्रेंच बीन्स देखा होगा, बीन्स जैसे इतनी लंबी लंबी वो फली जैसी होती है, तो उसकी मम्मी ने कुछ फ्रेंच बीन्स लिए एंड अ बिग लीफी कैबेज. टीना ने कॉलीफ्लावर लिया. टीनाज मदर टुक अ कैबेज. कैबेज जिसको हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं. कॉलीफ्लावर में तो बीच में व्हाइट फ्लावर होता है, साइड में लीव्स होती हैं, तो उसका जो फ्लावर वाला पार्ट होता है दैट इज कुक्ड. कैबेज इज लीफ. वो ऐसे लेयर्स 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 होती है लीफ की, और लीफ मतलब उसकी लेयर को हटाते जाते हैं. ठीक है. दैट इज ओनली, यू कैन से कैबेज मतलब लीव्स ही होती हैं और उसमें कुछ नहीं है. दैट इज ओनली ग्रीन लीव्स. दैट इज वाई इट इज रिटन एंड अ बिग लीफी कैबेज. कैबेज इज ओनली लीव्स. वो एक के ऊपर लेयर 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 जैसे लीव्स रहती हैं. ठीक है. The next para is mother bought Tina's favorite vegetable टू. मतलब मदर ने टीना की फेवरेट वेजिटेबल भी खरीदी. नाउ लेट अस सी व्हाट वाज टीना's फेवरेट वेजिटेबल. शी bought a basket full of tasty green peas. She bought a basket full of tasty green peas. मतलब basket full मतलब एक basket भर के. एंड विंटर्स में जब ग्रीन पीज आती हैं, दे आर वेरी टेस्टी. उनको ऐसे हम कच्चा भी तो कितना सारा खा जाते हैं ना, छीलते छीलते, बिकॉज दे आर वेरी स्वीट. तो विंटर्स में जो ग्रीन पीज आती हैं, दे आर वेरी स्वीट, बहुत अच्छी सी होती है. तो टीना की मम्मी ने टीना की फेवरेट वेजिटेबल दैट इज अ बास्केट फुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीज भी उसके लिए खरीदा. टीना promised to help her mother shell the pea pods.
She bought a basket full of tasty green peas. Tina promised to help her mother shell the pea pods. Mother bought Tina's favorite vegetable too. She bought a basket full of tasty green peas. Tina promised to help her mother shell the pea pods. तो टीना की मदर ने उसकी जो फेवरेट वेजिटेबल थी दैट इज ग्रीन पीस वो भी खरीदा. टीना ने प्रॉमिस किया अपनी मम्मी को कि वो मटर को छीलने में उनकी हेल्प करेगी. शेल का मतलब है उसकी जो बाहर की छिलका उतारना. जैसे जो बनाना है द फ्रूट्स विच हैव आउटर कवरिंग, जिनकी बाहर में एक लेयर होती है जिसको कि हम निकालते हैं, उसको कहते हैं शेल. शेल मतलब निकालना. शेल द पी पॉट्स, मटर की फली होती है ना, जब व्हेन वी टेक आउट द आउटर कवरिंग, उसका जब छिलका हटाते हैं तो वो अंदर से मटर के दाने निकलते हैं. तो वो जो पूरी जो फली जैसी जो होती है दैट इज कॉल्ड पी पॉट्स. उसको जब हम छीलते हैं तो उसके अंदर से फिर पीस निकलती हैं. ठीक है. तो टीना ने प्रॉमिस किया अपनी मम्मी से कि वो उन मटर को छीलने में, उसके छिलके हटाने में वो अपनी मम्मी की हेल्प करेगी. बिकॉज हर मदर बॉट ग्रीन पीस बिकॉज इट वॉज टीना's favorite vegetable. And I am sure you also like green peas. Green peas is such a vegetable which is liked by almost everyone. Very few children will be there who do not like green peas, जिनको green peas नहीं पसंद आती होगी. During winters, green peas are so tasty. मीठी मीठी होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है. Their shopping bags were full of vegetables. Tina had enjoyed her visit to the vegetable shop. She and her mother returned home tired but happy and contented. contented. Now they had bought so many vegetables, different types of vegetables उन लोगों ने खरीदा. तो उन लोगों के जो शॉपिंग बैग थे, नॉर्मली व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, जब हम कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ बैग्स लेके जाते हैं. वी कैरी आवर ओन शॉपिंग बैग्स. ठीक है ना, जिससे कि हम अपना सामान इजीली लेकर आ सकें. सो टीना और उसकी मम्मी के जो शॉपिंग बैग्स थे, दे वर फुल ऑफ वेजिटेबल्स. दे बॉट सो मेनी वेजिटेबल्स. क्या क्या खरीदा था? पहले तो टीना ने ऑरेंज कैरेट्स लिया, एक ह्यूज पम्पकिन लिया, फ्रेश कॉलीफ्लावर लिया, जूसी टोमेटोज, ब्राइट रेड बीटरूट. देन her mother bought 1 kilogram of potatoes, 1 kilogram of onions. 1 kilogram is a unit of measurement. जैसे जब हम किसी चीज को वे करते हैं, अगर हम अपने आप को भी वे करेंगे तो हमारा भी तो एक वेट होगा ना. वी ऑल्सो हैव अ वेट. तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग अ वेट. से लिक्विड को वेट करने का उनका अलग यूनिट है. ठीक है ना. और जो वेट होता है, जिसे हम वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, उसको वेट करने की यूनिट है किलोग्राम. ओके. सो किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट. जैसे हम जब वेजिटेबल्स लेते हैं तो कितनी वेजिटेबल लेंगे, शॉपकीपर हमको कितनी वेजिटेबल देगा वो हमें बताना होगा ना. अपने मर्जी से तो वो देगा नहीं.
तो हम बताते हैं कि हमको 1 kg चाहिए या ½ kg चाहिए और 1/4 kg चाहिए, कितना चाहिए, वी टेल द अमाउंट टू द शॉपकीपर। तो उसकी मम्मी ने 1 kg पोटैटो लिया, 1 kg अनियंस लिया, अलॉन्ग विथ अ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर। हैंडफुल का मतलब है जितना हाथ में आ जाए, थोड़ी सी, मतलब हाथ में कितना सारा हम लेंगे तो हाथ में जितनी कोरिएंडर आ जाए, तो थोड़ी सी उन्होंने कोरिएंडर भी लिया। मदर बॉट टीना's फेवरेट वेजिटेबल टू, मम्मी ने टीना की फेवरेट वेजिटेबल भी खरीदी। शी बॉट अ बास्केट फुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीस, उन्होंने एक बास्केट भर के टेस्टी ग्रीन पीस लिया। एंड टीना प्रॉमिस टू हेल्प अ मदर शेल पी पॉट्स, टीना ने प्रॉमिस किया अपनी मम्मी से कि वो घर पे उन पीस को छिलका हटाने में अपनी मम्मी की हेल्प करेगी। देन दे शॉपिंग बैग्स वर फुल ऑफ वेजिटेबल्स, अभी जब इतनी सारी वेजिटेबल्स ली थी तो शॉपिंग बैग तो भर जाएगा, तो उनका जो शॉपिंग बैग था वो वेजिटेबल्स से एकदम भर गया था। टीना हैड एंजॉयड हर विजिट टू द वेजिटेबल शॉप, टीना को वेजिटेबल शॉप पे जो विजिट पे गई थी उसमें उसको बहुत मजा आया, बिकॉज मे बी शी हैड नेवर सीन सो मेनी वेजिटेबल्स टुगेदर, उसने कभी इतनी सारी शायद वेजिटेबल्स देखी नहीं थी, तो उसको अपनी विजिट से बहुत मजा आया, उसने बहुत एंजॉय किया। शी एंड हर मदर रिटर्न होम टायर्ड बट हैप्पी एंड कंटेंटेड, मतलब टीना और उसकी मम्मी घर आते आते बहुत थक गए थे, क्योंकि इतनी सारी वेजिटेबल्स खरीदी, शॉपिंग किया, तो घर आते आते थक तो गए थे, बट दे वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, मतलब वो लोग ने जो अपनी शॉपिंग किया, जो वेजिटेबल्स खरीदा, उससे वो लोग सेटिस्फाइड थे, ठीक है, कि उन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली और बहुत अच्छी वेजिटेबल्स ली। तो टीना और उसकी मम्मी घर जब तक लौटे, दे वर वेरी टायर्ड बट दे वर वेरी हैप्पी, वो लोग थके तो बहुत थे लेकिन खुश थे और साथ में बहुत सेटिस्फाइड भी थे। Next paragraph is Tina QUICKLY quickly SQUEEZED squeezed a lemon and made some lemonade, LEMONADE, and made some lemonade, made some chilled lemonade, CHILLED, chilled lemonade for her mother. That was Tina's way of thanking her mother. That was Tina's way of thanking her mother. She got a big hug and a KISS kiss in RETURN, return. Okay, now वो लोग जब घर पहुंचे, when they reached home, both of them were very tired because they had done so much of shopping, इतना शॉपिंग बैग लेकर आए तो बहुत थक गए थे। टीना क्विकली, QUICKLY, क्विकली मीन्स जल्दी से, क्विक हमने पढ़ा था ना पिछले लेसन में, क्विक एंड फास्ट, जल्दी से। सो टीना क्विकली स्क्वीज्ड अ लेमन, स्क्वीज मतलब लेमन, नींबू को जैसे मैसे ऐसे करके निचोड़ते हैं ना, किसी में डालना होता है तो नींबू को कट करके मैसे निचोड़ते हैं, तो स्क्वीज करना मतलब निचोड़ना। लेमन को जो हम नींबू को निचोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्वीजिंग, स्क्वीज करना। सो उसने जल्दी से एक लेमन इज नींबू, तो
तो उसने जल्दी से एक नींबू स्क्वीज किया और अपनी मम्मी के लिए एक ठंडा, खूब ठंडा, चिल्ड मीन्स एब्सोल्युटली ठंडा, जैसे समर्स में चिल्ड वाटर पीने में, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीने में कितना मजा आता है। चिल्ड कोई भी कोल्ड ड्रिंक को, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मजा आता है। तो लेमनेड जो बनता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिकंजी, गर्मियों में हम अक्सर पीते हैं ना, पानी में नींबू स्क्वीज, लेमन स्क्वीज करते हैं, उसमें थोड़ा सा शुगर मिलाते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट मिलाते हैं और उसको पूरा मिक्स करके ठंडा ठंडा पीते हैं। बहुत बार हम आइस भी डाल लेते हैं, तो उसको हिंदी में जिसको शिकंजी बोलते हैं। दैट इज वेरी रिफ्रेशिंग। समर्स में जब ठंडा ठंडा जब कुछ भी पीते हैं, स्पेशली लेमनेड, तो पी के कितना अच्छा लगता है ना। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। सो उसने जल्दी से एक नींबू निचोड़ा और अपनी मम्मी के लिए ठंडा लेमनेड बना करके, लेमनेड इज शिकंजी, नींबू का जो पानी होता है, तो उसने चिल लेमनेड बना के अपनी मम्मी को दिया। दैट वॉज टीनाज वे ऑफ थैंकिंग हर मदर। वो क्या था, वो टीना का एक तरीका था अपनी मम्मी को थैंक्स बोलने का, एक तरीका था। बिकॉज हर मदर हैड टेकन हर टू अ वेजिटेबल शॉप। शी हैड नेवर बीन टू अ वेजिटेबल शॉप। वो कभी नहीं गई थी वेजिटेबल शॉप पे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। So since her mother took her to the vegetable shop, that was Tina's way of thanking her mother. जो उसने अपनी मम्मी को चिल लेमनेड बना के दिया, वो उसका अपनी मम्मी को थैंक्स बोलने का एक तरीका था। ठीक है। She got a big hug and a kiss in return. उसने अपनी मम्मी को लेमनेड बना के दिया and in return बदले में उसको क्या मिला, उसकी मम्मी ने उसको जोर से हग किया। जिसे मम्मी लोग जब प्यार करती है तो गले से लगाती है ना, हक करते हैं, तो उसकी मम्मी ने उसको एक जोर से उसको एक हक किया और उसको एक किस किया। बिकॉज शी केयर्ड फॉर हर मदर। नाउ सी, इन ईवीएस ऑल्सो वी हैव लर्न द लेसन केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग हमने पढ़ा था ना। तो सिंस टीना केयर्ड फॉर हर मदर, कि धूप से भी आए, शॉपिंग करके आए, मदर मस्ट बी टायर्ड, तो शी केयर्ड फॉर हर मदर, she made lemonade and she gave it to her mother, and in return उसको, and उसने, she was not forced to do it. उसकी मम्मी ने उसको नहीं बोला कि go and make some lemonade for myself. She did it. She made it on her own because she cared for her mother. उसको अपनी मम्मी की चिंता थी. She cared for her mother, so she made lemonade for her mother and she felt very happy. And in return what did she get? उसको बदले में एक मम्मी से बड़ा सा एक जोर से एक हक दिया मम्मी ने उसको, and एक किस किया. So this is the story, children, of visit to the vegetable shop. There are a lot of new words for you in this lesson. New words in the sense that the words which you may never have come across. कभी आपने वो words नहीं सुने होंगे. So there are a lot of new words in this lesson and lot of word meanings also. We will start words and word meanings in the next class. ठीक है? Today we have done the reading part. I will just read the lesson once again. Lesson number 5, a visit to the vegetable shop. One bright summer morning, Tina's mother decided to take Tina on a visit to the vegetable shop. The vegetable vendor, Mohan Lal, had his shop on the corner of MG Street. The shop was laden with different types of vegetables. It was neat, clean, and looked very colorful. Tina was excited to find so many colorful vegetables. Her mother asked her to help select the vegetables she would like to take home. Tina picked up some orange carrots, a huge pumpkin, a fresh cauliflower, some juicy tomatoes, and a bright red beetroot. Her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions each, along with a handful of coriander. She also chose some green vegetables like bunches of spinach, some French beans, and a green big leafy cabbage. Mother bought
Tina's favorite vegetable too. She bought a basket full of tasty green peas. Tina promised to help her mother shell the pea pods. Their shopping bags were full of vegetables. Tina had enjoyed her visit to the vegetable shop. She and her mother returned home tired but happy and contented. Tina quickly squeezed a lemon and made some chill lemonade for her mother. That was Tina's way of thanking her mother. She got a big hug and a kiss in return. So we have completed the reading part, children, reading and explanation also. In the next class, we will be doing wow words and word meanings. So today I will stop here only, children. Thank you.